Hey, hi dosto. My name is Ashish and I welcome you all to my YouTube channel Your Next. It's been a couple of weeks. You say that I was away from making videos and was not posting anything. So I'm sorry for that, but we are once again back with the upcoming topics, and there are few talks in the global news and in the domestic as well. So we will be discussing few of them right now. I have few shortlists. With me right now, I have Mr. Avinash, who is subject matter expert, and he would definitely enlighten us. So, Avinash, we would like to go through the some of the uh, topics which are like U.S.-China conflict that we see today. So recently, the U.S. government has shut down Chinese consulate in Houston and also in California. So could you please give us a brief about it? Yeah, sure. First of all, thank you so much, Ashish, for having me here. Let's start and let's talk about the U.S. China relationship. See, right now, if you see the world around us, for quite some time, just after the Cold War when ended, in the early 90s, you can say, the late 80s and the early 90s. Thereafter, it has been considered as it was run. The world whole together was run by the one single power. So the America being as the most superpower, and then rest of them were in the another league. But right now, अभी का जो situation है, the things are completely different. The China is threatening not only the America but all around the globe, and it's even in the last couple of weeks, if you see that there is constant the skirmish going on between India and in the China, where India shares the boundary with the China, and in some of the case where China even not sharing boundary with the other nation like the Indonesia, they don't share the land boundary with them, but there is I mean, threatening them. At the same time, if you see the China and Australia, China and Australia again they do not share the boundary, but quite some time China has threatened Australia. सो अक्रॉस द वर्ल्ड मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी सारे जो कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो चाइना से मतलब किसी न किसी वे में प्रभावित है, मतलब किसी न किसी वे में जो उसको नहीं कहती है कि फीलिंग द हीट, तो दे आर फीलिंग द हीट विच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द चाइना. नाउ अभी जो सिचुएशन है वो चाइना एंड यूएस का इतना टेंस क्यों हो चुका है, एंड इट इज वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट यू कैन से. एंड व्हाई डू आई कॉल इट वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, बिकॉज जब कोई कंट्री अपना कॉन्सुलेट बंद करती है तो आप समझिए कि वो अपने जो रिलेशनशिप है उसको काफी लिमिटेड कर रही है धीरे धीरे. आप अगर कई बार देखते होंगे इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है अपने अपने एम्बेसडर को बुला लेते हैं या और अपने उसके जो स्टाफ है उनको कम कर देते हैं. तो ये कुछ हो रहा है. इसके जो दो बड़े फैक्टर जो इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, वो पहला फैक्टर ये है कि अभी तो यूएस में एक इलेक्शन ना, अभी जो आप देखेंगे कि देखिए हर गवर्नमेंट का रहता है कि उसको जीत के आना है, तो उसके एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जिसकी डिमांड को उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करना है. तो जो यूएस का जो अभी का जो प्रेसिडेंट है ना, ही इज बीइंग कंसीडर्ड एज द अल्फा मेल, वी कैन से देम अबाउट हिम, एंड नेशनलिस्टिक अप्रोच होता है. तो वहाँ पे किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अमेरिका जो है जिसकी अपनी एक पावर है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें कहीं कमी आ रही है. तो एक तो वो चीजें हैं. दूसरा है कि रियल थ्रेट है. रियल थ्रेट क्या होता है कि देखिए कि अगर पावर होता है, लेकिन वो पावर अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में होता है तो वहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं. मीन देयर आर फ्री जुडिशरी, फ्री मीडिया जो कि आपको क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And if you talk about the China, now you see that the many the Chinese army also got killed during the small skirmish which happened in the last month between India and China. लेकिन उनको वो सम्मान भी नहीं मिला और उसके बारे में छपा तक भी नहीं. अब वो 20 मरे 50 मरे किसी को नहीं पता है. तो उसके लिए एक अपने सैनिकों की कुर्बानी देना जो है वो दैट्स लाइक वेरी इजी थिंग फॉर देम. So from that point of view, if you are talking, so it's really going like in that way. सेकेंड जो है ट्रेड का, जो अगर आप देखेंगे तो ट्रेड का जो डेफिसिट है वो आपको पता है कि चाइना और अमेरिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा है. उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो उन अमेरिका के जो सब मैं आपको ये यहाँ ले जाऊंगा कि यूएस ने ऐसा भी ब्लेम किया है कि
बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो चाइनीज कंपनी है वो यूएस में आकर के जासूसी कर रही है और कहीं कहीं सिक्योरिटी का जो है उनका कंपनियों के अंदर में जाकर के डेटा कोलैब करना, ये देखिए सब काम। ये ऐसा नहीं है कि आज से हो रहा है, ये बहुत दिनों से हो रहा है कि जो चाइनीज स्पाई जो है या चाइनीज जो एजेंसी है, जो स्टेट ओन्ड एजेंसी, इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कई कंट्री में होते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं, जो आपके साइबर अटैक करते हैं, वो फ्रीलांसिंग होते हैं, रैंसम लेते हैं और चले जाते चले हैं। बट चाइना के केस में क्या होता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है मोटिव ओरिएंटेड है। वो मोटिव ओरिएंटेड है। तो आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल जो Property। आपका प्रॉपर्टी है उस पे कई बार वो हुआ है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो यूएस में जो ये कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन का जो हो रहा है, तो उसके जो Research है। साइंटिफिक रिसर्च